So now it is the turn of question number 14. Equation of a plane is if the points 1, 1p and minus 3, 0, 1 be equidistant from the plane r dot 3i plus 4j minus 12k plus 13 is equal to 0. दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और बता रहा है वो दोनों पॉइंट्स इस प्लेन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव कन्वर्टेड दिस प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म बाय पुटिंग r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk. ये आपका कार्टेशियन फॉर्म आ गया. नाउ डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज सेम, इक्वी डिस्टेंस. सो व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला? Distance formula is ax1 plus by1 plus c1 upon under root a square plus b square plus c square. 1, 3, 4 का आपने किया, 1 का 4 में किया, p का -12 में किया, प्लस 13 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर, ये किया आपने. और ऐसे इधर कर लिया, p की दो वैल्यू आ गई 1 और 7/3. What it has been given in question number 15. Question number 15. Find the equation of plane passing through the line of intersection of this and parallel to x-axis. So equation of plane passing through, मैंने इसको भी कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लिया है. Equation of plane passing through point of intersection of two planes P1 and P2 is given by P1 plus lambda P2. ये आपका P1 है प्लस lambda P2. मैंने x के टर्म एक साथ ले लिए, y की एक साथ ले लिए. क्यों लिया है? Because this plane is parallel to x axis. Plane is parallel to x axis. It means normal of the plane is perpendicular to the x axis. Normal of the plane is perpendicular to x-axis. So directions ratio of normal are this: 1 plus 2 lambda, 1 plus 3 lambda, and 1 minus lambda. And perpendicular. What are direction ratios of x-axis? 1, 0, 0. ये डायरेक्शन रेशियो और ये डायरेक्शन रेशियो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं. So a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0 करेंगे. You will get the value of lambda और इस lambda की वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे तो आपका डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल आ जाएगा. फिर इस lambda की वैल्यू को आप जो आपने यहाँ सपोज किया है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x plus y plus z minus 1, यहाँ पुट करेंगे and you will get the equation of plane y minus 3z plus 6 is equal to 0. But question was asked in vector form, so you have to convert this in vector. Very easy. r लिखिए डॉट y की जगह j minus 3z की जगह -3k plus 6 is equal to 0. तो वेक्टर के फॉर्म में आंसर भी आ गया. ओके. Now come to the question number 16. What is question number 16? If O be the origin and the coordinates of P 1, 2, -3, then find the equation of plane passing through P and perpendicular to OP. Equation of a plane passing through P means x1, y1, z1 आपको दिया हुआ है. Perpendicular to OP. Plane is perpendicular to OP. What does it mean? Normal of the plane. Normal of the plane are direction ratios of normal क्या हो जाएंगे? 1, 2, -3. Why? Plane is perpendicular to OP. So normal will be parallel to OP. तो जो OP के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही नॉर्मल के भी डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे 1, 2, -3. So जो आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है, इफ इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1, z1 एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ इट्स नॉर्मल आर a, b and c is given by a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 is equal to 0.
ओके, अब आप x1 y1 z1 की वैल्यू रख देंगे, a b c की वैल्यू रख देंगे एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. In question number 18, find the distance of the point from the point of intersection of this line and plane. So आप जो लाइन का इक्वेशन दिया है ये और प्लेन का इक्वेशन दिया है ए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन. क्या कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? यहां से आर की वैल्यू जो है लाइन में उसको आप प्लेन में आर की जगह पुट कर देंगे. यहाँ रख दिया, बड़ा ब्रैकेट का यूज करेंगे. लिखने का तरीका देखिए, a प्लस लेमडा भी आपने लिखा, बड़ा ब्रैकेट लगाया, डॉट आई माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू 5. यहां पर आपने क्या किया है, आई वाले एक साथ दे दिए, जे वाले एक साथ, के वाले, और फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लेमडा 0. सो इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम 2i माइनस जे प्लस 2k. मीन्स 2 minus 1 2 is the point of intersection. 2 minus 1 2 क्योंकि लेमडा 0 आ गया. 2 minus 1 2 is the point of intersection of plane and line. Now you have to find the distance between 2 minus 2 and minus 1 minus 5 minus 10. So distance फार्मूला आप यूज करेंगे. डिस्टेंस का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर आफ्टर कैलकुलेशन. Question number 19. Find the vector equation of the line passing through 1, 2, 3 and parallel to the plane r dot I minus j plus 2k is equal to 5 and r dot 3i plus j plus k is equal to 6. आपको एक लाइन का इक्वेशन पता करना है जो 1, 2, 3 से पास कर रहा है. सो a इज इक्वल टू I plus 2j plus 3k. Now this line is parallel to the plane. प्लेन का इक्वेशन आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है और प्लेन के पैरेलल है ये लाइन. व्हाट डज इट मीन? दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ द प्लेन एंड नॉर्मल ऑफ द प्लेन है आई माइनस जे प्लस 2k. सो आप इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ए बी एंड सी मान लीजिए. नॉर्मल का 1 माइनस 2 प्लस 2 है, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे इज इक्वल टू 0. a1 ए बी सी का एक इक्वेशन आ गया. फिर दूसरे प्लेन के भी पैरेलल है तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, फिर से आपका ए बी सी के फॉर्म में दूसरा इक्वेशन आ जाएगा. उन दोनों इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता चुका हूं. पहले बी के पहले का लिखेंगे, फिर सी के पहले का, फिर ए के पहले का, फिर बी के पहले का. ए बी सी की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी, लेकिन एक आ जाएगी ए इज इक्वल टू इतना लेमडा, बी इज इक्वल टू इतना लेमडा, मीन्स प्रोपोर्शनल. ए बी सी की वैल्यू आप ले आए एंड द लाइन इज पासिंग थ्रू 1, 2, 3. फिर आप इक्वेशन लगा देंगे ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1. ए बी सी की वैल्यू आपको लेमडा के फॉर्म में दी हुई है और x1 y1 1, 2, 3 दिया. यू विल गेट योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 20 में बिल्कुल इसी की तरह है, बस यहाँ पर ये कार्टेशियन इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ भी 1, 2 माइनस 4 से पास कर रही है लाइन आपकी. तो x1 y1 z1 की वैल्यू दी है. अब मान लीजिए उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोस ए बी सी हैं, तो ये परपेंडिकुलर है दो लाइन के. यहाँ लाइन के ही परपेंडिकुलर दे दिया है x माइनस 8/3 x माइनस x1 अपॉन ए y माइनस y1. तो दोनों लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोस दिए हैं, मीन्स जिसके पैरेलल है 3 माइनस 16 7, 3 8 माइनस 5, आप इनके डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे. तो डॉट प्रोडक्ट निकालने पर आपको ए बी एंड सी की वैल्यू मिल जाएगी. दोनों क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 बिल्कुल एक तरीके के हैं. इसको आप देखना एंड यू विल गेट योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 21. Prove that if a plane has the intercepts A, B and C and is at a distance of p units from the origin. एक प्लेन जिसके इंटरसेप्ट ए बी सी है, उसका इक्वेशन ये होता है, आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज p.
सो डिस्टेंस फार्मूला अभी मैंने आपको बताया, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे कि ओरिजिन का तो 0 0 0 होता है, वो तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ -1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जो लिखते हो, तो इस प्लेन के रिगार्डिंग a की जगह आप 1 अपॉन a लिखो, क्योंकि x अपॉन a है, 1 अपॉन a x 1 अपॉन a b, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर मत लिख देना, 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू p। ये आपका मॉडुलस का साइन लगाया है एब्सोल्यूट वैल्यू का, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ ये चीज आई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद होल स्क्वायर किया एंड यू गॉट योर आंसर दिस वन। Question number 22. Suppose you have been provided two planes and you have to find the distance between two planes. दो प्लेन का इक्वेशन दिया है and you have to find the distance between two planes. So what you have to do? You have to find out the distance of first plane from the origin, and after that distance of second plane also from origin. दो डिस्टेंस आएंगे, दोनों प्लस में आएंगे क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगता है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स इज इक्वल टू, दूसरे प्लेन में से पहले प्लेन के डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। यहाँ पे एक्चुअली ये प्लेन्स पैरेलल है, तो यहाँ पर डायरेक्ट कुछ बच्चे करते हैं d2 में से d1 सब्ट्रैक्ट करके अपन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी कैसे भी दो प्लेन दिए हैं, ओरिजिन से आप इसका डिस्टेंस पता कर लीजिए, ओरिजिन का इसका डिस्टेंस पता कीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि डिस्टेंस अगर माइनस में आ रहा है उसे प्लस में कन्वर्ट कर लेना, फिर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। इसके आगे एक तो क्वेश्चन है, दो प्लेन्स का इक्वेशन दिया है, आप प्रूव कर सकते हैं कि ये प्लेन परपेंडिकुलर है। आई होप you have understood this exercise, miscellaneous exercise, which one is the very important question. It is my prediction there will be at least one question of 4 marks from this exercise. So go through this exercise, pay your more and more time on self practice. Self practice is very must, so keep it up. We will very soon finish your syllabus and work hard.